Once again, good morning, my dear friends. I, Sandeep Yadav, welcome you all in this business glossaries. Friends, as you know, from last many days, we are going to cover the Companies Act 2013. Under this Companies Act 2013, we already covered first and very important question, that is that is features of a company. These questions we already covered in our earlier lectures. What are the different features of a company? That topic we covered. In today's lecture, we are going to focus, our entire focus will be on the types of a company. Our entire focus will be on the types of a company. There are different types of a company. Means on the basis of different thing, there are different types of a company. You can see this chart. In this chart, it is clearly stated that on the basis of mode of incorporation, there are three types of a company. Sorry, there are two types of a company: statutory and registered company. As well as my friend, in earlier cases, there was another one type. That type was chartered company. Which companies were called chartered company? Chartered company means the company which were incorporated by the document रॉयल चार्टर. वो डॉक्यूमेंट कौन सा था? इंग्लैंड का डॉक्यूमेंट था. उस इंग्लैंड का जो डॉक्यूमेंट था रॉयल चार्टर, उस रॉयल चार्टर डॉक्यूमेंट से मीन्स उस डॉक्यूमेंट में जो प्रोसीजर फॉलो किए, बताइए उस प्रोसीजर को फॉलो करके जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती थी, उस कंपनी को हम क्या कहते थे? चार्टर कंपनीज कहते थे. एंड आई होप एवरी इंडियन मस्ट नो, in 16th century one company was ruled over our India. The name of that company was, yes, East India Company. सबको पता है ना, East India Company was there. That East India Company, East India Company was the best example of chartered company. पर अभी ये chartered company ये टाइम अभी एग्जिस्ट करता नहीं, इसलिए हमने क्या नहीं किया, यहाँ पे उसे ऐड नहीं किया. Means on the basis of mode of incorporation, there are two types of company. One is the statutory company and another one is the registered company. Only for the sake of your knowledge, I explain the another kind of company, that is chartered company. Understand? Okay. On the basis of number of members, means how many members are there in a company. On that basis, there are again three types of company. One is private company, public company, and one person company. Private, public, and one person company. On the basis of liability of its member, on the basis of whose liability? On the basis of liability of the member of a company. On that basis, again there are three types of company. Which are those? Company limited by shares, company limited by guarantee, and unlimited company. And unlimited company. These are the three important kinds on the basis of liability of members. Now next kind is what? On the basis of control. Means one company controls the other. On that basis, there are again two types of company. One is the holding company and another is the subsidiary company. Holding and subsidiary company. Good. Now next, on the basis of access of capital, how the capital is accessed. On that basis, very two important kinds of companies are there. Which are those? Which are those? One is a listed company and another is unlisted company. Practically I will show you. डिमैट अकाउंट पर जाके मैं आपको बताऊंगा कि विच कंपनीज आर लिस्टेड एंड जो डिमैट अकाउंट पे जो कंपनीज नहीं होती है, जो स्टॉक मार्केट पे जो कंपनी नहीं होती, वो कौन सी होती है? अनलिस्टेड. आई विल शो यू. नाउ अदर्स कंपनी. which are those others company? Government company, foreign company, dormant company. These are few others company. My friend, this is not a complete table. इसमें और बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, बट right now I am presenting my lecture before SYBCom student. Therefore, I here I included few important types only. You can add few more types as like needy company, associate company, small company. You can add these numbers also. Section 8 company, these numbers also can be added here, but it will be a very bulky chapter. Therefore, I added few very important types only. Okay, so
Let's see one by one. In this entire chapter, our focus will be on the meaning of every kind of company. Means what? What is mean by statutory company? What is mean by registered company? So meaning will be covered in this entire chapter. Is it clear? Okay. So let's see the definition of each and every kind of a statutory, every kind of a company. Now, first kind of a company is statutory company. First kind of a company is statutory company. Now, what is meant by statutory company? Statutory company means what? So, first of all, everybody must know the meaning of statute. Statute means what? यहाँ पे स्टैच्यू मीन्स स्टैच्यू नहीं है, जैसे हम बचपन में खेलते थे स्टैच्यू स्टैच्यू, वो स्टैच्यू नहीं, यहाँ पे स्टैच्यूट वर्ड यूज, स्टैच्यूट का मीनिंग है एक्ट. व्हाट इज मीन बाय स्टैच्यूट? स्टैच्यूट का मीनिंग है एक्ट, और इससे क्या कहते हैं लॉ. एक्ट और लॉ में बहुत सारा डिफरेंस है, बट सिर्फ समझ लो आपके नॉलेज के लिए. स्टैच्यूट का मीनिंग है एक्ट. एक्ट. स्टैच्यूटरी कंपनीज. Statutory companies. Which companies are called statutory companies? In a very simple language, it is defined that statutory companies are those companies. Statutory companies are those companies which are incorporated by a special act. Which are incorporated by a special act of the parliament or state legislature. Means in a very simple language it is defined that स्टैट्यूटरी कंपनी का जन्म यानी बर्थ कहाँ पे होता है, तो ये सिंपल आपको पता होना चाहिए. स्टैट्यूटरी कंपनी जो भी है ना, वो स्पेशल एक्ट से बनती है. मींस ये स्टैट्यूटरी कंपनी बनाने के लिए क्या करना होता है, पार्लियामेंट में, कहाँ पे, आइदर इन अ पार्लियामेंट और इन अ स्टेट लेजिस्लेचर, दिस स्पेशल एक्ट शुड बी पास. बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स हैं, उनको ये भी पता नहीं होता है कि एक्ट्स कहाँ पे पास होता है. हु इज हैविंग पावर टू इनैक्ट लॉज? सो माय डियर फ्रेंड्स, द who is having power? The parliament is having power. Parliament is having power to enact laws for our India. Means the law which is enacted by the parliament will be applicable to whole of the India. जो लॉ पार्लियामेंट में पास किया है ना, वो कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? पूरे पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा. अभी नाउ जम्मू एंड कश्मीर को भी, बिकॉज यू नो एवरीबडी नो दैट आर्टिकल 370 is scrapped down from our Indian constitution. Therefore, now today, if any law which is passed by our parliament will be applicable to whole of the India. Understand? As well as state legislature, not only the parliament is having power, but the state legislature or legislative assembly, that word is used, legislative assembly, यानी उनको भी क्या होता है, पावर्स होते हैं. Means the law which is passed by the state legislative assembly. सपोज अगर किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने लॉ पास किया ना, that will be applicable to that particular state only. Means for example, the law which is passed by our Maharashtra state legislature, that law will be applicable whom? Applicable within the Maharashtra only. It will not applicable to nearby state Gujarat, Karnataka. It will not be applicable to other state. Understand? Means statutory companies means what? Statutory companies are those companies which are incorporated. कहाँ से incorporate होती है वो? स्पेशल एक्ट से इनकॉर्पोरेट हो चुकी है. उसके लिए स्पेशल एक्ट आइदर द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में क्या करना होता है, पास करना होता है. उससे जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती है उसे हम क्या कहेंगे, स्टैट्यूटरी कंपनी कहेंगे. गेटिंग माय पॉइंट? ओके, यस. नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स? What are the examples of statutory company? Very best examples are there. First one is the RBI. First, very important example, very important. RBI, Reserve Bank of India. SBI, State Bank of India. LIC, Life Insurance Corporation of India. These are few best examples of statutory companies. These are the very best example of statutory companies. Means
ये जो भी है ना, आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी, ये ना एक स्पेशल एक्ट से पास हुई चुकी है। इसके लिए क्या किया था, पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास किया था। कौन सा एक्ट था, वो एक्ट था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इन 1934 में एक एक्ट पास किया था पार्लियामेंट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। उस एक्ट से क्या बन चुकी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये क्या हो चुकी है, इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। In the same way, State Bank of India is incorporated by the State Bank of India Act 1955 and LIC from 1956 Act, LIC Act 1956। इस स्पेशल एक्ट से क्या हो चुकी है, ये कंपनीज क्या हो चुकी है, इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे स्टैट्यूटरी कंपनीज। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, बहुत सिंपल है। या एब्सोल्युटली। अभी उसके साथ साथ थोड़ा और डिस्कशन करते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी के बाद। प्लीज मेक इट डाउन। स्टैट्यूटरी कंपनी जो होती है ना, दैट कंपनी डजंट हैविंग मेमओए, मेमोरेंडम नहीं होता है, उस कंपनी का मेमोरेंडम नहीं होता। जनरली क्या होता है, जो अदर्स कंपनीज होती है अपार्ट फ्रॉम स्टैट्यूटरी कंपनी, एवरी कंपनी रिक्वायर्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट कि अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपके पास नहीं है, आपने बनाया नहीं, तो आपकी कंपनी क्या नहीं होती, रजिस्टर्ड नहीं होती। रजिस्टर्ड नहीं होती किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। इसीलिए अदर जो कंपनीज है उनको एमओए कंपल्सरी है, पर जो स्टैट्यूटरी कंपनीज है उनको मेमोरेंडम एमओए बनाने की जरूरत नहीं होती। इट डजंट रिक्वायर द एमओए ऑफ द कंपनी। अंडरस्टैंड? नाउ if that company doesn't having a MOA, that statutory company doesn't having a MOA, then from where these company derive their powers, from where their functions are has been defined, means आरबीआई के पावर्स, आरबीआई को जो भी पावर्स है वो आरबीआई पावर्स कहाँ से लेती है, फंक्शन आरबीआई की कहाँ पे लिखे होते हैं, तो वो जो पावर्स एंड फंक्शंस है ना आरबीआई के, वो कहाँ कहाँ से लेती है आरबीआई, वो जो एक्ट पास किया है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, जो एक्ट पास किया उस एक्ट से वो क्या करती है, पावर डिराइव होती है, या तो पावर लेती है, एज वेल एज उसके फंक्शन उसी एक्ट में डिफाइन किए होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? as well as another important thing is there about this statutory company। ये स्टैट्यूटरी कंपनी जो होते हैं ना, उसके लास्ट में जनरली आप कोई भी कंपनीज देखते हो, उस कंपनी के लास्ट में क्या होता है, एक तो प्राइवेट लिमिटेड होता है, एक तो पब्लिक लिमिटेड होता है, या तो लिमिटेड ये वर्ड यूज होता है। ऐसे वर्ड होते हैं ना हर एक कंपनी के लास्ट में। पर स्टैट्यूटरी कंपनी से, उसके स्टैट्यूटरी कंपनी के लास्ट, उसका कंपनी का जो नाम है उसमें लास्ट में ये लिमिटेड या पब्लिक ये कुछ ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। यू नेवर सीन, कभी देखा आरबीआई के पीछे ये वर्ड लिखा आरबीआई लिमिटेड, एसबीआई लिमिटेड? आप गूगल पे भी सर्च करो, ऐसे वर्ड आपको नहीं मिलेंगे। अंडरस्टैंड? दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द स्टैट्यूटरी company। And last and very most important thing is there, though these statutory companies are not incorporated by any of the companies act। ये कहाँ से इनकॉर्पोरेट हो चुकी है स्टैट्यूटरी कंपनी? एक स्पेशल एक्ट से इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। भले ही ये स्पेशल एक्ट से इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, तो भी इस कंपनीज को, ये स्टैट्यूटरी कंपनीज को प्रेजेंट कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल। प्रेजेंट कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल टू whom? To the statutory companies, do you understand or not, my dear student? Do you understand? Yes, I'm asking you. Yeah. Okay. So yes, thank you, Sakshi, Vaishnavi. Very good, very good, very good. So let's move here. Very good. Thank you, Tanvi. So we will move towards the another kind of company. If you understand, we will move towards the another kind of company. So let's see. Statutory, very simple. Huh? Next is the registered company. Registered, again, this is very simple. In very simple language is to define. Registered company means what? इसके नाम में उसका आंसर है रजिस्टर्ड, यानी कहाँ से हो चुकी है, कहीं ना कहीं रजिस्टर हो चुकी है। रजिस्टर्ड कंपनीज आर दोज कंपनी विच आर
रजिस्टर्ड अंडर, कहाँ पे अंडर, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2030 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इन सिंपल लैंग्वेज में, registered companies are those company which are registered where under the present Companies Act 2013 or the previous company laws। कौन सी previous company law? 1956 से 1930, 1866, ये जो previous company laws है उनसे रजिस्टर्ड हो चुकी है या तो प्रेजेंट के कंपनीज एक्ट से रजिस्टर्ड हो चुकी है, उस कंपनीज को क्या कहेंगे हम? इस कंपनीज को हम रजिस्टर्ड कंपनीज कहेंगे। देखो यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल एग्जिस्टिंग कंपनीज। अभी जो भी एग्जिस्टेंस कंपनीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा आपके रिलायंस मान लो, टाटा मान लो, टीसीएस मान लो, जो भी प्रो, इन्फोसिस, हाँ, पेडलाइट, ये बहुत सारी कंपनीज है। जो भी कंपनीज है, दैट कंपनी, ऑल एग्जिस्टिंग कंपनी जो इंडिया की है, अदर देन स्टैट्यूटरी कंपनी, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था स्टैट्यूटरी कंपनीज का, है ना, एसबीआई, एलआईसी, आरबीआई, ये स्टैट्यूटरी कंपनीज के एग्जांपल है। ऑल एग्जिस्टिंग कंपनी अदर देन स्टैट्यूटरी कंपनीज आर दी रजिस्टर्ड कंपनी। यानी स्टैट्यूटरी कंपनीज छोड़ के बाकी कंपनीज को क्या करना होता है अपने इंडिया में? रजिस्टर्ड ही करना होता है बिकॉज एवरीबडी नोज दैट इन अवर इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी इज कंपल्सरी। पार्टनरशिप जैसा नहीं है, ऑप्शनल। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसा है? कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। ओके, इसलिए ये होता है। ओके, गुड। दिस इज अबाउट द रजिस्टर्ड कंपनी। एज वेल एज यहाँ पे ये कहा है कि we already covered in our earlier PPT that this Companies Act 2013 is applicable to all registered companies as well as it is applicable to companies which generate electricity as well as which is applicable to all insurance company as well as it is applicable to banking company। The present Companies Act is applicable to all electricity company, insurance company, banking company। इस कंपनीज को क्या है? प्रेजेंट का कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल। भले ही प्रेजेंट का कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल इससे, पर इस कंपनीज, ये जो ऐसी कंपनीज होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, इसके भी क्या होते हैं? कुछ स्पेशल एक्ट होते हैं। इस कंपनी से रिलेटेड भी क्या स्पेशल एक्ट होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी के लिए और एक एक्ट है, क्या है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट है 1948 का। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक एक्ट पास किया है, इंश्योरेंस एक्ट 1938। एज वेल एज जो बैंकिंग की जो कंपनीज है, बैंकिंग कंपनी, उनके क्या है? बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। मीन्स उस कंपनीज को, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इनको प्रेजेंट का 2013 एक्ट तो फॉलो करना ही है, उसके साथ साथ उन्हें ये एक्ट्स की भी प्रोविजन क्या करना है? फॉलो करना है। ये एक्ट्स की प्रोविजन क्या करना है? उन्हें फॉलो करना है। ओके, अंडरस्टैंड? दिस इज अबाउट द रजिस्टर्ड कंपनी। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, on the basis of mode of incorporation, we covered two types of company. First one is the statutory company and another one is the, yes, registered company, statutory and registered company। Good, I hope you understand। Now let's move towards the other kind of company। Now third कौन सी है? पढ़ सकते हो आप? या on the basis of number of members, on the basis of number of members, there are again three types of companies। First, private company, public company and one person company। on the basis of, कौन से बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने होते हैं? मुझे लगता है सबको इसके पहले भी हमने रिवीजन देख लिया है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होते, मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते, देखा है ना। उसके बाद पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होते, मैक्सिमम कितने होते, उसके बाद ओपीसी में मिनिमम कितने होते, मैक्सिमम कितने होते, ये हमने क्या किया था? ऑलरेडी एक बार रिवीजन ले लिया है। उसी के अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ दैट मिनिमम दैट मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेंबर्स, देयर आर अगेन थ्री टाइप्स ऑफ कंपनी। नाउ फर्स्ट इज प्राइवेट कंपनी।
व्हाट इज मीन बाय प्राइवेट कंपनी? जनरली हम ऐसे बोलते हैं कि प्राइवेट कंपनी सर, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट होती है, बट व्हाट इज मीन बाय प्राइवेट कंपनी? क्या उसकी कोई डेफिनेशन है? यस, उसकी एक डेफिनेशन है। इस प्राइवेट कंपनी के एक्ट में उसकी डेफिनेशन बताइए। नाउ लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय प्राइवेट कंपनी। ये डेफिनेशन को हम बहुत सिंपल तरीके से हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। देखो ये वर्ड कितना इंपॉर्टेंट, हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये वर्ड क्यों यूज किया है? आपको इसके पीछे की बैकग्राउंड भी पता होनी चाहिए। बिफोर 2013 Act, means according to 1956 Act, private company, every private company should require a minimum paid up share capital, that is 1 lakh rupees. हर एक प्राइवेट कंपनी को मिनिमम 1 लाख रुपीज का क्या चाहिए था? मिनिमम 1 लाख रुपीज का पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए था अकॉर्डिंग टू 1956 एक्ट। बट अभी ये क्या किया, ये रिमूव किया। नाउ नाउ सच रिस्ट्रिक्शन इज नॉट देयर ऑन अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को इतना ही मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए। अभी कितना भी अगर मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है कंपनी के पास तो भी चल सकता है, जो भी प्रिस्क्राइब किया। कहाँ पे? उनके मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रिस्क्राइब किया। ओके, private company means a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its article, article means यहाँ पे article का मीनिंग क्या है? which by its article of association, उसके article of association से कुछ चीजें की है। क्या चीजें की है? फर्स्ट, उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या किया है? रिस्ट्रिक्ट किया है। क्या रिस्ट्रिक्ट किया है? restrict the right to transfer its shares, restrict the right to transfer its shares means उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की क्या किया, जो राइट है, राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स का राइट क्या किया? रिस्ट्रिक्ट किया है। अभी रिस्ट्रिक्ट किया है यानी क्या? इसका एक एग्जांपल देखते, यहाँ पे देख लो। सपोज ऐसा मान लो एक प्राइवेट कंपनी, कोई एक प्राइवेट कंपनी, हम क्या करते, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ये क्या है? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके, एक्स वाई जेड क्या है? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अभी इस प्राइवेट लिमिटेड में एवरीबडी नोज, सबको पता है प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? यस, मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए 2। प्राइवेट कंपनी में, हर एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में? प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते? तो दैट इज द 200। मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते? 200 मेंबर्स हो सकते। सपोज ऐसा मान लो यहाँ पे एक पर्सन है, एक पर्सन ए पर्सन है, उसके पास कुछ शेयर्स है। किस कंपनी के? एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कुछ शेयर्स है। नाउ ही वांट्स टू ट्रांसफर हिज शेयर्स, ट्रांसफर करना यानी उसे बेचना है। सपोज ही वांट टू सेल हिज शेयर्स, ही वांट्स टू ट्रांसफर हिज शेयर्स टू एनीबॉडी एल्स। इसे भी बेच सकता है? नो, यहाँ पे क्या है? रिस्ट्रिक्शन से किसी भी पर्सन को वो बेच नहीं सकता या तो ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन होता है। क्या रिस्ट्रिक्शन होता है? कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, प्राइवेट कंपनी के किसी मेंबर के पास शेयर्स है ना, दैट शेयर्स कैन बी ट्रांसफर अमंग देयर मेंबर्स ओनली। shares of a private company can be transferred among their members only means यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी है, सपोज ऐसा मान लो इस प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर्स है, तो ए को, ए इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट प्राइवेट कंपनी। अभी ए को वो जो शेयर्स है ना बेचने, किसमें किसे बेचने? वो जो बाकी बचे 199 मेंबर्स है ना, उनको ही वो क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। ये क्या है? ये रिस्ट्रिक्शन है। ये रिस्ट्रिक्शन होता है किस पे? प्राइवेट कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन होता है। ये प्राइवेट कंपनी पे क्या होता है? रिस्ट्रिक्शंस होता है। ओके, अंडरस्टैंड? दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द प्राइवेट कंपनी। एज वेल एज लिमिट्स, लिमिटेशन है। लिमिटेशन किस पे? नंबर ऑफ इट्स मेंबर। क्या लिमिटेशन है? मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी? यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख दिया है। मैक्सिमम जो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? दैट इज
200, ये लिमिट है, उससे ज्यादा आप प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स नहीं ले सकते। अगर ऐसा होता है तो दैट कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी। इसलिए मैक्सिमम लिमिट कितना है, मैक्सिमम लिमिट बता दी गई है 200 की, 200 की मैक्सिमम लिमिट है प्राइवेट कंपनी में। अंडरस्टैंड, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी। ये वर्ड यूज क्यों किया, बिकॉज यू मस्ट नो, ये वन पर्सन कंपनी ना, ये वन पर्सन कंपनी नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी का एक काइंड है, वन पर्सन कंपनी से प्राइवेट कंपनी का एक काइंड है। डिफरेंस क्या है, वन पर्सन कंपनी में वन मेंबर होता है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए। और यहाँ पे भले ये प्राइवेट कंपनी है, आपको पता है प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, पर वन पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 मेंबर होता है और मैक्सिमम भी 1 ही मेंबर होता है। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि भले ही वन पर्सन कंपनी या प्राइवेट कंपनी पर उसमें मैक्सिमम मेंबर 200 नहीं हो सकते, उसमें कितना 1 ही मेंबर मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है। अंडरस्टैंड, मीन्स प्राइवेट कंपनी केसेस में हमने 2 चीजें पहले देखी, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन है, किस पे रिस्ट्रिक्शन है, यस ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा है लिमिटेशन है, किस पे लिमिटेशन है प्राइवेट कंपनी में, नंबर ऑफ मेंबर्स पे लिमिटेशन है कि मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। एज वेल एज थर्ड थिंग इज देयर इन अ प्राइवेट कंपनी, दैट इज अ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन है प्राइवेट कंपनी पे, कोई प्रोहिबिशन से, क्या प्रोहिबिशन है प्राइवेट कंपनी पे, ये प्राइवेट कंपनी पे प्रोहिबिशन से कि प्राइवेट कंपनी कैन नॉट मेक इन्विटेशन टू पब्लिक, private company cannot make invitation to public to subscribe their securities। Means in a very simple language it is defined that private company cannot raise their capital by public, to public private company cannot raise their capital। अगर प्राइवेट कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो प्राइवेट कंपनी ने क्या करना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है, जो भी मेंबर्स है उनसे आप जो भी उनका फीस वगैरह मेंबर्स की कुछ जो भी रहेगा उनसे आप रिकवर कर सकते हैं, यानी कैपिटल उस तरह से आप रेज कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी। पर प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक से पैसा कलेक्ट नहीं कर सकती। मीन्स व्हाट, आपने कभी ये देखा है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट पे लिस्ट है, एनएससी और बीएससी पे प्राइवेट कंपनी के शेयर्स लिस्ट आपने देखे, कभी भी नहीं देखोगे आप। भले आप चेक कर लो एक बार स्टॉक मार्केट पे एनएससी और बीएससी पे जो भी कंपनीज है, कौन सी कंपनी लिस्ट है उसका लिस्ट चेक करो, आपको एक भी प्राइवेट कंपनी का नाम वहां पे नहीं दिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि उनपे क्या है, उनपे प्रोहिबिशन है। क्या प्रोहिबिशन है, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब देयर सिक्योरिटीज। अंडरस्टैंड, मीन्स जिस कंपनीज को ये चीजें एप्लीकेबल होती है, रिस्ट्रिक्शंस, लिमिट, प्रोहिबिशन, ये चीजें एप्लीकेबल होती है, दैट कंपनी इज कॉल्ड अ प्राइवेट कंपनी। अंडरस्टैंड, दैट कंपनी इज कॉल्ड अ प्राइवेट कंपनी। आप बहुत सारे एग्जांपल भी प्राइवेट कंपनी के देख सकते हो। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट काइंड ऑफ कंपनी। नेक्स्ट कौन सी है प्राइवेट के बाद, यस एवरी इंडियन नोज दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनी। बाकी तो पता है या नहीं यार, मुझे पता नहीं, पर किसी भी इंडियन को पूछो कंपनी के काइंड्स कितने, सबको पता है, छोटे बच्चों को भी पता है कि 2 काइंड है, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। सो प्राइवेट कंपनी का हमने डेफिनेशन देख लिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी। व्हाट इज मीन बाय पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी, it is simple definition, very simple definition. Public company means a company which is not a private company। पब्लिक कंपनी किसे कहेंगे, जो प्राइवेट नहीं है उसे हम पब्लिक कहेंगे। देखो ये डेफिनेशन में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट। कैसे, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। नॉट अ प्राइवेट कंपनी मीन्स व्हाट, जो प्राइवेट कंपनी को आपने जो रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, जो प्रोहिबिशंस लगाए ना, वो किससे एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, वो पब्लिक कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होंगे।
लेट्स सी वो एप्लीकेबल होते हैं कि हम देखते हैं एक बार। आप देखते देखो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है कि प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स है ना ट्रांसफर नहीं हो सकते, किसको, आउटसाइड द मेंबर्स ट्रांसफर नहीं हो सकते। पर पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है? कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं। पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर होते हैं, फ्रीली। इवन प्रैक्टिकली बता दिया जाएगा, अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट के आपके पास कोई डीमैट अकाउंट के शेयर्स है, तो अगर आपको ट्रांसफर करना है ना, एक विद इन क्लिक पे आप क्या कर सकते हो, पब्लिक कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर कर। किससे ट्रांसफर किए वो भी आपको पता नहीं होता। एक बार आपने डीमैट अकाउंट पे जो भी शेयर्स है उस सेल की ऑर्डर दे दी, शेयर्स ट्रांसफर हो गए, किससे ट्रांसफर हो वो भी आपको पता नहीं लगता है। मीन्स इतने फ्रीली ट्रांसफर होते शेयर्स किस केस में, पब्लिक कंपनी के केस में। मीन्स द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू द पब्लिक कंपनी। यस, नाउ नेक्स्ट क्या है, लिमिटेशन है। किस पे, प्राइवेट कंपनी पे लिमिटेशन है। किस पे लिमिटेशन है, नंबर ऑफ मेंबर्स पे लिमिटेशन। कितना है, 200 है। पब्लिक कंपनी पे वैसा कोई रिस्ट्रिक्शन है? पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड, नो लिमिट, देयर इज नो एनी लिमिट ऑन इन अ पब्लिक कंपनी। कितने भी लाखों करोड़ों कितने भी मेंबर्स हो सकते पब्लिक कंपनी के केसेस में। मीन्स ये दूसरा भी जो लिमिटेशन है वो एप्लीकेबल नहीं है, किससे, पब्लिक कंपनी। एज वेल एज थर्ड इज द प्रोहिबिशन होता है। प्राइवेट कंपनी में प्रोहिबिशन होता है किस पे, इन्विटेशन, पब्लिक से वो, पब्लिक को वो सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करने का इनविटेशन नहीं दे सकती प्राइवेट कंपनी। यानी सिंपल लैंग्वेज में प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी कर सकती है, नहीं कर सकती ना, पब्लिक कंपनी वही करती है। हमारा ये जो आप जो लिखो स्टॉक मार्केट, अपना इंडियन का स्टॉक मार्केट है, बीएससी एनएससी, इस पे जो भी कंपनीज लिस्ट है, कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी। और पब्लिक से ही पैसा कलेक्ट करती नहीं। जो स्टॉक मार्केट पे शेयर्स अवेलेबल है, कौन कौन शेयर परचेस करता, आपके और मेरे जैसे लोग ही, रिटेलर्स। उसमें अलग अलग होते, रिटेलर होते, डीआई होते, एफआई होते, यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते, फॉरेन इन्वेस्टर होते। यानी पब्लिक से पैसा कौन कलेक्ट कर रही है, पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर रही है। मीन्स पब्लिक कंपनी पे ऐसा कोई प्रोहिबिशन होता नहीं है, ऐसा कभी भी कोई प्रोहिबिशन नहीं होता। किस पे, पब्लिक कंपनी पे। अगर अगर मान लो से, अगर सपोज ऐसा मान लो ऐसा कोई प्रोहिबिशन लॉ ने लगा दिया पब्लिक कंपनी पे, तो सबसे पहले क्या होगा पता है, सबसे पहले जो एनएससी और बीएससी को ताला लगेगा। क्योंकि ऐसे प्रोहिबिशंस अगर कोई उनको अलाउड ही नहीं है पब्लिक कंपनीज को, तो सबसे पहले एनएससी और बीएससी बंद हो जाएगी। इसीलिए आप गवर्नमेंट कभी भी ऐसा गलती से भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता कि पब्लिक कंपनी को क्या है, ऐसा कुछ प्रोहिबिशन है। उल्टा गवर्नमेंट अपनी जो कंपनीज है उनको अपलिफ्ट करने के लिए जो फ्लेक्सिबल पॉलिसीज एप्लीकेबल कर रहा है। ओके, सो डू यू अंडरस्टैंड द पब्लिक एंड private company? On the basis of members, there are two types of company. One is the public company and another one is the, sorry, three types of public company, private company, and now next kind of company we are going to discuss in today's lecture. Okay, ये last देखेंगे आज के lecture के लिए. That is one person company. One person company. Now which company is called one person company? किस कंपनी को वन पर्सन कंपनी कहेंगे, ये थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, वन पर्सन कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो सम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अबाउट दिस काइंड ऑफ कंपनी। ये क्या है, ये वन पर्सन कंपनी ना, ये कब इनकॉर्पोरेट हो चुका है, ये सॉरी कब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है। दिस काइंड ऑफ कंपनी इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम विच ईयर, फ्रॉम 2013। मीन्स जब ये 2013 का कंपनी एक्ट बनाया ना नया, उस एक्ट से ही ये नया काइंड इंट्रोड्यूस हुआ है, ये नया काइंड इंट्रोड्यूस हुआ है। उसके पहले क्या होता था, यू नो, बिफोर 2013 देयर वाज वन एक्ट। कौन सा एक्ट था,
कंपनीज एक्ट 1956 एक्ट का। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, a one person, a single person cannot form a company. भले ही उस पर्सन के पास कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी, एवरीथिंग ही इज हैविंग, capital he is having everything, then also a single person, a single person cannot form a company, cannot form a company according to 1956 एक्ट। क्योंकि क्या है, अकॉर्डिंग 1956 एक्ट में ये काइंड ही नहीं था, वन पर्सन पर्सन कंपनी ये काइंड है ही नहीं। उसमें क्या था, उसमें प्राइवेट सॉरी उसमें 1956 एक्ट में मैक्स आप क्या कर सकते थे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते थे, प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर सकते थे। और प्राइवेट कंपनी के आपको पता है, सबके लिए पता है कि प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए, मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए। 2 मेंबर्स, सपोज मान लो कि यहाँ पे एक पर्सन है, ए नाम का पर्सन है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास मैनेजमेंट स्किल है, उसके पास कैपिटल है, उसके पास कैलिबर है, सब कुछ उसके पास है। बट भले ही अपने लॉ ने क्या कहा था, कितने मेंबर्स चाहिए मिनिमम प्राइवेट कंपनी के लिए, 2 चाहिए। ये कितना है, अकेला है। फोर्सफुली, फोर्सफुली कैसे भी करो, उससे क्या करना चाहिए, किसी और पर्सन को, किसी और पर्सन को उसके जो भी कंपनी, सपोज ऐसा मान लो उसकी XYZ कंपनी इनकॉर्पोरेट करना जा रहा है, वो उस कंपनी का मेंबर बनाना है फोर्सफुली, यानी एक पर्सन उसका मेंबर नहीं बन सकता था, मिनिमम 2 ही चाहिए। ये क्या था, ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक था अपने अर्लियर एक्ट्स का, 1956 का। दिस ड्रॉबैक इज ओवरकम इन कंपनीज एक्ट 2013। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम इंडिया में ही इंट्रोड्यूस किया, इसके पहले बहुत सालों से ब्रिटेन में, इंग्लैंड में और जो अदर कंट्रीज है उसमें बहुत सालों से ये क्या है, वन पर्सन कंपनी ये काइंड इंट्रोड्यूस किया गया है। और अपने इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया है, 2013 से इंट्रोड्यूस किया। नाउ लेट्स सी which company is called one person company, which company is called one person company। यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया, वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी, one person company means a company which has only one person as a member। one person company means कौन सी कंपनी, which has only one person as a member। सिर्फ एक पर्सन क्या होता है, उसका मेंबर होता है। उस कंपनी को हम क्या कहेंगे, उस कंपनी को हम कहेंगे वन पर्सन कंपनी कहेंगे। अंडरस्टैंड, मीन्स आपको सबको पता होना चाहिए कि वन पर्सन कंपनी में मेंबर्स के बारे में अगर हम देखते हैं, मेंबर्स के बारे में, तो मेंबर्स के बारे में कितने मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए वन पर्सन कंपनी में, वन पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 मेंबर्स हो सकते, 1 मेंबर चाहिए। मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं वन पर्सन कंपनी में, वो भी क्या है, मैक्सिमम 1, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया, देखो ओनली लिख रहे हैं वर्ड, ओनली वर्ड मीन्स मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते, 1, मिनिमम 1, मैक्सिमम 1। अभी इसके डायरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं, डायरेक्टर्स की। वन पर्सन कंपनी में डायरेक्टर्स भी होते हैं ना, डायरेक्टर्स होते हैं, तो ये डायरेक्टर्स कितने हो सकते, मिनिमम कितने डायरेक्टर्स चाहिए वन पर्सन कंपनी का बिजनेस संभालने के लिए, उसका आंसर है मिनिमम 1 डायरेक्टर चाहिए, मिनिमम 1 डायरेक्टर। एंड वन पर्सन कंपनी में कितने मैक्सिमम डायरेक्टर हो सकते हैं, कुछ लोग बोल लगते हैं सर इतना मिनिमम 1 है तो मैक्सिमम 1, नहीं, मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं वन पर्सन कंपनी में, दैट इज 15। मीन्स हाउ 15 इट इज, मेंबर एक है, मेंबर एक ही मेंबर है, एक मेंबर की कंपनी, उस एक मेंबर की कंपनी को चलाने के लिए कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, दैट इज मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। ओके, this is what about, this is the minimum and maximum number of directors in one person company। Now let's move towards the another point। Now who can become a member, who can become a member of a one person company, कौन बन सकता है, कोई भी बन सकता है, नहीं, उसके भी कुछ क्राइटेरिया है। who can become a member of a company, who can become a member of a company। Now first thing is member of a
मेंबर और नॉमिनी, उसके बाद हम नॉमिनी की क्लास पे भी आएंगे। हु कैन बिकम फर्स्ट, दैट एक ही मेंबर होता है ना, दैट वन मेंबर मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन, दैट वन मेंबर मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन यानी क्या, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज ह्यूमन बीइंग। यानी क्या, एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक कंपनी दूसरी दूसरी किसी कंपनी, वन पर्सन कंपनी का मेंबर नहीं बन सकती। एक कंपनी दूसरी कंपनी का मेंबर बन सकती है, पर एक कंपनी दूसरी कोई वन पर्सन कंपनी का मेंबर नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही मेंबर होता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि वन पर्सन कंपनी में मेंबर्स कौन सा होना चाहिए, नेचुरल ही पर्सन मेंबर बनना चाहिए। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। नाउ नेक्स्ट, वो नेचुरल पर्सन भी कैसा होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। द पर्सन मस्ट बी द इंडियन सिटीजन, इंडिया की उसके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए, यानी फॉरेनर वन पर्सन कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है, यहाँ पे लिखा है। एज वेल एज थर्ड इज दैट he must be the resident of India from not less than 182 days। इंडियन सिटीजन चाहिए, पर उसके साथ साथ ना वो इंडिया में, बहुत सारे इंडियन सिटीजन कहाँ हैं, अब्रॉड में रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं ना। तो यहाँ पे देखो वो कम से कम 182 डेज, दिस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कितने चाहिए, कितने दिन, 182 डेज वो इंडिया में क्या रहना चाहिए, इंडिया में रहना ही चाहिए। और इसमें ये चीज नहीं है कंटिन्यूसली रहना चाहिए, ब्रेक में भी रहता है तो भी चलेगा, पर मैक्सिमम कितने दिन रहना चाहिए, 182 डेज इंडिया में रहना ही चाहिए। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट criteria is that that person must be a major person. That person must be a major person, means it is clearly stated that a minor cannot become a member of a one person company. Minor cannot become a member of a one person company. Means, my dear friend, your examination this question will be asked, who can become a member of a company। यहाँ पे ऑप्शन आ सकता है आपको, आर्टिफिशियल पर्सन, इंडियन सिटीजन, नेचुरल पर्सन, मेजर। हु कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, तो उसमें आंसर क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, एज वेल एज माइनर आल्सो कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। एंड आई ऑलरेडी कवर्ड दिस पॉइंट दैट one person company is a kind of private company, private company kind। And last thing is there, uh, about the one person company, that is nominee। nominee means one person company में आपको पता है कि यहाँ पे कितने मेंबर होते हैं, सिर्फ एक ही मेंबर होता है, वो भी नेचुरल पर्सन। यहाँ पे देखो नेचुरल पर्सन, एक ही मेंबर, वो भी नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन की तो डेथ भी हो सकती है ना, नेचुरल पर्सन की डेथ भी हो सकती है, नेचुरल पर्सन की कोमा में भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनकॉम्पिटेंट भी बन सकता है वो। अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता है, नेचुरल पर्सन के बाद उसकी डेथ वगैरह कुछ होता है, तो उस कंपनी का मेंबर कौन बनेगा, हु विल बिकम द मेंबर ऑफ दैट वन पर्सन कंपनी। इसीलिए वन पर्सन कंपनी जब फॉर्म कर रहे हैं ना, जब वन पर्सन कंपनी रजिस्टर्ड कर रहे, उसी टाइम एक चीज कंपलसरी की है, जो MOA होता है, जो वन पर्सन कंपनी का जो MOA होता है, उसमें डिफरेंट क्लॉजेस होते हैं, जैसे नेम रजिस्टर्ड, वो तो क्लॉजेस होते हैं। उस क्लॉजेस के साथ ही साथ ना एक और क्लॉज कंपल्सरी भी ऐड करना होता है MOA में, वन पर्सन कंपनी के। वो क्लॉज है नॉमिनी क्लॉज। वो क्लॉज कौन सा है, नॉमिनी क्लॉज। और उस नॉमिनी क्लॉज में उस कंपनी का कौन नॉमिनी बनेगा, उसका नाम लिखा होता है, उसका नाम लिखा होता है with his prior consent। his name is his name is included in the nominee clause of a MOA of one person company। हाँ, ये होता है वन पर्सन कंपनी के नॉमिनी क्लास में। अगर उस पर्सन की डेथ होती है, कुछ भी होता है उस पर्सन के पास, तो उस कंपनी का जो नॉमिनी, वो उस वन पर्सन कंपनी का क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। दिस इज अबाउट दी वन पर्सन कंपनी, दिस ऑल अबाउट दी वन पर्सन कंपनी।
ओके, सो जो नेक्स्ट जो रिमेनिंग टाइप्स है, जैसे कि ऑन द बेस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस of control, or जो भी types है, that we are going to cover in our next video, next lecture.